Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Economic 4 semester, آج ہم لیکچر نمبر 12 سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے 1 سے لے کے 11 تک لیکچر جو ہیں ہم کالج میں ریگولر کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. تو چیپٹر نمبر 1 تقریباً ہم آخر تک پہنچ چکے ہیں. کچھ ٹاپک اس کے رہتے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے آج، اور آج کے لیکچر میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ مارکیٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ مارکیٹس ہمارے پاس ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم انوائرمنٹ ہے جس میں انویسٹرز، یا جس کو ہم سپلائرز آف فنڈز بھی کہتے ہیں، اور بوروورز یا جن کو ہم ڈیمانڈر آف فنڈز بھی کہتے ہیں، تو وہ لوگ آپس میں جو ہے فنڈز کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، فنڈز ٹرانزیکٹ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ مارکیٹس جو ہے ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بناتا ہے جس میں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے فنڈز کو جو ہے سپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور جن کو ضروری ہے تو وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے فائنینشیل مارکیٹ کے بارے میں. اس کے بھی ہم نے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ شروع کے لیکچرز میں لیکچر نمبر 10 11 میں کور کیے تھے، لیکن آج ہم ان کو گو تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم فائنینشیل مارکیٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ فائنینشیل مارکیٹس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل مارکیٹ ہمارے پاس ایک فورم ہوتا ہے، فورم ان وچ سپلائرز آف فنڈز. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک فورم ہے جس میں سپلائرز آف فنڈ، سپلائرز کون ہوتے ہیں؟ جو فنڈز دیتے ہیں، جن کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ آف منی پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جن کے پاس سیونگز پڑی ہوتی ہیں، تو وہ سپلائی کرتے ہیں فنڈز کو. اینڈ ڈیمانڈر آف لونز یا ڈیمانڈر آف فنڈز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹ کے سپلائرز آف فنڈز کو اور ڈیمانڈر آف لون کو یا ڈیمانڈر آف فنڈز کو آپس میں ایک فورم پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ایک جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دے کین انویسٹ. ٹھیک ہے، اور یہ آپس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. مینس سپلائر جو ہے وہ انویسٹ کرے گا اس فنڈز کو کسی بھی ڈیمانڈر کے پاس جس کو اس فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ انویسٹمنٹس کین ٹرانزیکٹ ڈائریکٹلی. تو فائنینشیل مارکیٹ ہمارے پاس ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ سپلائرز آف فنڈ، ڈیمانڈر آف فنڈ، انویسٹرز وہاں پہ جا کے اور ڈائریکٹلی وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے فنڈز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو فائنینشیل مارکیٹس میں پھر ہم جو ہے شارٹ ٹرم ڈیبٹ انسٹرومنٹس کو یوز کرتے ہیں، مارکیٹیبل سیکیورٹیز جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور لانگ ٹرم سیکیورٹیز کو، بانڈز کو، سٹاکس کو، ان کو یوز کرتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ 2 مین فائنینشیل مارکیٹ ہے ہمارے پاس. ایک ہے ہمارے پاس منی مارکیٹ. ٹھیک ہے، جس میں ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ شارٹ ٹرم ڈیبٹ انسٹرومنٹ جب ہم کیا کرتے ہیں، ٹرانزیکٹ کرتے ہیں ان شارٹ ٹرم ڈیبٹ انسٹرومنٹ میں، تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں، منی مارکیٹ کہلاتے ہیں. کیپٹل یا سیکیورٹیز مارکیٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہم لانگ ٹرم سیکیورٹیز کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لانگ ٹرم سیکیورٹیز کی ڈیلنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل شیئرز اینڈ بانڈ کی جب ہم ڈیلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو کیا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں، منی مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ڈیبٹ انسٹرومنٹ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اور کیپٹل مارکیٹ میں ہم لانگ ٹرم ڈیبٹ انسٹرومنٹ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. فنڈز کین بی جنریٹڈ بائی، فنڈز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے یا پبلک
ऑफरिंग के जरिए। ठीक है, ये भी हम टॉपिक्स कवर कर चुके थे क्लास में कि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी को इशू करते हैं जिसमें हमारे पास बॉन्ड्स आते हैं या प्रेफर्ड स्टॉक आते हैं डायरेक्टली टू इन्वेस्टर और ग्रुप। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में हम किसी भी सिक्योरिटी को, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे वो स्टॉक हो, उसको हम डायरेक्टली एक इन्वेस्टर को इशू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, एक इन्वेस्टर है एक्स, और हमारे पास क्या है, ये ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास बोरोवर्स हैं, लेकिन एक्स क्या करता है, सिर्फ ए को ही अपने इन्वेस्टमेंट अपने बॉन्ड्स और शेयर्स जो है वो स्टॉक जो है वो इशू करता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। बाकी को उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, बाकी के साथ उसका कोई काम नहीं है, उसने सिर्फ ए को ही दे दिया। ठीक है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हमारे पास कहलाता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्लेसमेंट की। ठीक है, पब्लिक प्लेसमेंट में क्या होता है, ये हमारे पास इंडिविजुअल पीपल फॉर एग्जांपल हैं, ये हमारे पास बैंक्स हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरीके से हमने पढ़े थे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पब्लिक प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, नॉन एक्सक्लूसिव सेल करते हैं ऑफ आइदर बॉन्ड एंड स्टॉक। नॉन एक्सक्लूसिव मींस कि हम किसी एक बंदे को टारगेट नहीं करते, हम ऑफर करते हैं इंडिविजुअल पीपल को, हम ऑफर करते हैं बैंक्स को, जितने भी बैंक्स हमारे पास मौजूद हैं, हम ऑफर करते हैं जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, सबको हम जो है वो पब्लिक ऑफर में हम शेयर्स या बॉन्ड्स को इशू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम क्या करते थे, किसी स्पेसिफिक बंदे को हम चूज करते थे, किसी स्पेसिफिक पार्टी को हम चूज करते थे प्राइवेट प्लेसमेंट में। लेकिन अगर हम पब्लिक प्लेसमेंट की बात करें तो पब्लिक प्लेसमेंट में हम ऑफर करते थे हर एक नॉन एक्सक्लूसिवली, हम किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट नहीं करते थे, बल्कि नॉन एक्सक्लूसिवली हम क्या करते थे, उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ टू मार्केट्स, एक हमारे पास है प्राइमरी मार्केट, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। ठीक है, प्राइमरी जिस तरीके से नाम से ही जाहिर है हमारे पास कि हम प्राइमरी इनिशियली हम जब किसी शेयर को इशू करते हैं, सिक्योरिटी को इशू करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में हमारे पास जो होता है वो इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी मार्केट में हमारे पास इशूअर इन्वॉल्व होता है, जो इशू कर रहा होता है, जिस तरीके से कोई भी कंपनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी मार्केट में हमारे पास कोई भी कंपनी है, कंपनी वाई क्या कर रही है, अपना इशू कर रही है शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा। तो वो कहाँ पे इशू करेगी, या वो जब इशू करेगी तो हम उसको कौन सा मार्केट कहेंगे, प्राइमरी मार्केट। और यहाँ पे इशूअर क्या होता है, हमें पता होता है कि ये बंदा जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट is a market in which securities are initially issued। ठीक है, फिर बता देता हूं, फाइनेंशियल मार्केट इन विच securities are initially issued are called primary market। ठीक है, the only market जिसमें हमें इशूअर क्या करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन में।
प्राइमरी मार्केट में इशूअर जो सिक्योरिटी बेच रहा है, जो सेल कर रहा है सिक्योरिटी को, वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्राइमरी मार्केट में हम पहली दफ़ा सिक्योरिटी को इशू करते हैं और इससे हमें इशूअर का भी पता चल जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी, सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इन विच प्री ओन सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्री ओन, पहले से खरीदी हुई सिक्योरिटीज को हम ट्रेड करते हैं, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि वाई ने सिक्योरिटी जब पहली दफा इशू की थी तो वो प्राइमरी मार्केट था। अब वाई ने किसको इशू की है? फॉर एग्जाम्पल किसी भी बैंक को इशू की हैं वो सिक्योरिटीज। ठीक है, अब वो बैंक क्या कर रही है, सिक्योरिटीज दोबारा से सेल आउट कर रही है अपने प्रॉफिट को हासिल करने के लिए। किसको? एनी पर्सन, फॉर एग्जांपल डी को इशू कर रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये हमारे पास प्राइमरी मार्केट है। ठीक है, और उसके बाद बी से लेके डी तक जब वो सिक्योरिटी जा रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि वाई ने तो बी को बेच दी है, अब बी ने 1 महीना, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन अपने पास रखा था और उसने वो क्या कर दिया, इशू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी मार्केट, कि जब उसने प्री ओन्ड, जो कि उसने खरीदी थी, उसने इशू नहीं की, बी ने ये सिक्योरिटी खरीदी थी, इशू नहीं की थी, ये इशू नहीं कर रहा बल्कि ये रीसेल कर रहा है। तो जब रीसेल की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। ये टॉपिक हम डिटेल से जो है क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इस टॉपिक को मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। बोर्ड पे मैंने ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करवा दी थी कि कैसे हम जो है सप्लायर से फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए, या जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र करते हैं एज अ डिपॉजिट, एज अ फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डिमांडर ऑफ फंड्स लोन की शक्ल में और सिक्योरिटीज़ की शक्ल में उन फंड्स को क्या करता है, हासिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मनी मार्केट के बारे में बताया गया है दोबारा से कि मनी मार्केट इज क्रिएटेड बाय अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप। मनी मार्केट क्रिएटेड बाय अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर्स एंड डिमांडर्स। ठीक है, ये हमारे पास फाइनेंशियल रिलेशनशिप से बनता है बिटवीन सप्लायर्स एंड डिमांडर ऑफ शॉर्ट टर्म। वो लोग जो कि 12 महीने या इससे कम टाइम के लिए सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं। ठीक है, फंड्स में ट्रेड करते हैं, तो उनको हम मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये जर्नली कौन से सिक्योरिटीज में होता है, ट्रेजरी नोट्स में, कॉमनवेल्थ बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो ये 4 काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की, जो कि हम मनी मार्केट में करते हैं, और इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, इनका जो मेच्योरिटी टाइम होता है वो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इनकी टाइमिंग नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। Suppliers and demanders are brought together through such
medium such as bank and securities dealers. ठीक है, मनी मार्केट में कहा गया है दोबारा से कि सप्लायर्स एंड डिमांडर्स ब्रॉट टुगेदर थ्रू मीडियम्स, तो या तो ये बैंक के जरिए और या सिक्योरिटी डीलर्स के जरिए। ठीक है, मनी मार्केट में जो सप्लायर्स और डिमांडर्स को एक जगह पे लाया जाता है, जिसके जरिए जो मीडियम हम यूज करते हैं वो बैंक्स होते हैं और सिक्योरिटी डीलर्स होते हैं। कहीं पे जो है वो रिजर्व बैंक्स भी काम करते हैं, जिस तरीके से एक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, सप्लायर्स और डिमांडर्स को आपस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेड करते हैं। तो उसको आरबीए, अगर आपको कहीं पे भी आरबीए का टर्म नजर आता है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, ये भी आप लोगों के लिए एक मनी मार्केट का काम करता है, जो कि सप्लायर्स और डिमांडर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, जहां पे वो आके अपने सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। ठीक है, तो अब हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट, the market that enables suppliers and demanders for a long term funds to make transaction। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए एनेबल अलाउ करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सप्लायर्स के लिए और डिमांडर्स के लिए। वो कौन से लोग होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फंड्स में लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस करते हैं विया ये forums provided by various security exchange। ठीक है, तो इनका जो मीडियम होता है वो डिफरेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो कि सप्लायर्स और डिमांडर्स के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में ट्रांजैक्शन प्रोवाइड, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और उनके लिए जो सिक्योरिटी एक्सचेंज हैं जिनको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, वो फोरम और प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो बॉन्ड्स और शेयर्स में होती है, प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी। ठीक है, ये मतलब है कि प्रेफर्ड शेयर है या ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में सप्लायर्स और डिमांडर्स जो कि लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं वो आ जाते हैं और क्या करते हैं, आपस में लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को जो है वो फंड्स की ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास बॉन्ड आ जाता है। बॉन्ड जो है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बिजनेसेस या गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग टर्म या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को रेज करने के लिए इशू करती है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रेफर्ड स्टॉक भी है, जो कि हम स्टॉक के उसमें टॉपिक्स में पढ़ चुके थे शेयर होल्डर्स के, तो वहां से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप होती है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज इज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट प्रोवाइड मार्केट प्लेस। ठीक है, क्या करती है, ये मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है इन विच फर्म्स कैन रेज फंड, और इसमें फर्म्स बिजनेसेस क्या करती है, फंड्स को रेज करती है। ठीक है, बाय सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज या प्री ओन्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहां पे वो फंड्स को रेज कर सकती है बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, और या तो न्यू सिक्योरिटीज हो सकती है या प्री ओन्ड सिक्योरिटीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तरफ जाते हैं। हमारे पास टू मेन टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज है और दूसरा ओवर द काउंटर
सिक्योरिटी एक्सचेंज है। ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या होता है? टेंजिबल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, टेंजिबल ऑर्गेनाइजेशंस दैट act as a secondary market where outstanding securities are resold। ठीक है, ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी मार्केट हमारे पास एक टेंजिबल मार्केट होता है जहां पे क्या की जाती है, ये एज अ सेकेंडरी मार्केट का काम करता है, और जहां पे आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि बाहर मार्केट में मूव कर रही होती हैं, एक के हाथ में दूसरे के हाथ में, एक बेच रहा है दूसरा बेच रहा है। आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कंपनी ऑलरेडी बेच चुकी होती हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होती हैं, वो आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, तो टेंजिबल ऑर्गेनाइजेशन act as a secondary market where outstanding securities are resold is called organized exchange। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइज एक्सचेंज को क्या कह सकते हैं? ये सेकेंडरी मार्केट का काम करता है। ठीक है, जहां पे पहले से सेल शुदा, पहले से बेची हुई हम सिक्योरिटीज को दोबारा से रीसेल करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज जो होते हैं इनके ऑफिसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इनके ऑफिसेस भी होते हैं, इनकी बिल्डिंग्स भी होती हैं, जो कि इस वजह से हम इसको टेंजिबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये जो है 62% जो है टोटल डॉलर अमाउंट इनकी वॉल्यूम होती है, मीन 62% जो है ये 46% ऑफ टोटल शेयर वॉल्यूम है, जो कि शेयरिंग और इनकी अकाउंट्स की जो है वो परसेंट है। मतलब 62% जो है ये ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम जाते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ये हमारे पास जो है इंटेंजिबल मार्केट है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंटेंजिबल मार्केट जो होता है ये हमारे पास लिस्ट नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज नहीं होती, इनका कोई ऑफिस नहीं होता, बल्कि ये कंप्यूटर्स पे, नेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, किसी भी सर्वर पे इनकी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, ये किसी सिस्टम को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए क्या करते हैं, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी करते हैं। ठीक है, तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज जो है ये इंटेंजिबल मार्केट होता है। इट इज एन इंटेंजिबल मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये परचेज और सेल का काम करता है सिक्योरिटी का, पर ये मार्केट जो होती है ये इंटेंजिबल होती है, तभी इसको हम ओवर द काउंटर OTC ट्रेडर्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, नस्दक सिस्टम इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, ये इनका नाम है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज और काउंटर एक्सचेंज में एक डिफरेंस है। जिस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज का पढ़ा कि ये आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज को सेल करता है। कौन सी सिक्योरिटीज को? आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज को। ये एज अ सेकेंडरी मार्केट का काम करता है हमारे पास ऑर्गेनाइज। ठीक है, लेकिन OTC ओवर द काउंटर एक्सचेंज ये क्या करता है? ये आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज को भी सेल करता है और परचेज करता है,
اور نیو پبلک ایشوز سیکورٹیز کو بھی کیا کرتا ہے، پرچیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو او ٹی سی جو ہے یہ بوتھ سیکنڈری مارکیٹ اور پرائمری مارکیٹ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ او ٹی سی پرائمری مارکیٹ اینڈ سیکنڈری مارکیٹ دونوں کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یو ایس کیپٹل مارکیٹ، دوسرا ہمارے پاس ہے یورو بانڈ مارکیٹ، ٹھیک ہے، اور تھرڈ ون ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ۔ تو یہ ہمارے پاس تین انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، انٹرنیشنلی سیکورٹیز ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ایس کیپٹل مارکیٹ جو ہے یہ ون آف دی ورلڈز لارجسٹ سیکورٹی ایکسچینج مارکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو یو ایس کیپٹل مارکیٹ میں ہر ملک سے ہر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہر بزنس کیا کرتی ہے، اپنی شیئرز کی اور انویسٹمنٹ کرتی ہے اور ڈیپتھ اینڈ ایکویٹی مارکیٹ میں اپنی فنڈز جو ہے وہ شیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یورو بانڈ مارکیٹ۔ یورو بانڈ مارکیٹ کیا ہے، اس میں کارپوریشن اینڈ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، بانڈ کو ایشو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور بانڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈالرز میں ہوتے ہیں، اور انویسٹرز جو کہ آؤٹ سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ہوتے ہیں تو وہ ان میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹس اور کارپوریشنز کیا کرتی ہے، ایشو کرتی ہے بانڈز کو، اور ان بانڈز کو پھر ڈالرز میں ان کی پرائس ہوتی ہے، اور آؤٹ سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دا مارکیٹ ان وچ corporations and governments typically issues bonds denominated in dollars and sell them to the investors located outside the United States، ٹھیک ہے۔ تو یورو بانڈ مارکیٹ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جس میں کارپوریشن اینڈ گورنمنٹس کیا کرتی ہے، بانڈ کو ایشو کرتی ہے ان ڈالرز، اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے جتنے بھی لوگ باہر ہوتے ہیں وہ ان بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں ان ڈالرز، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ کیا کرتا ہے، الاؤ کرتا ہے کارپوریشنز کو، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ الاؤ کرتا ہے کارپوریشنز کو، بڑی بڑی کمپنیز کو، کہ وہ بلاکس میں اپنے شیئرز کو کیا کریں، نمبر آف انویسٹرز کو سیل آؤٹ کریں ان ڈیفرنٹ کنٹریز، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ کیا کرتا ہے، کارپوریشنز کے جتنے بھی شیئرز ہوتے ہیں ان کے بلاکس بناتا ہے، باکسز بناتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے شیئرز، ٹھیک ہے، نمبر آف شیئرز، پھر وہ جتنے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ان کنٹریز میں پھر وہ کیا کرتا ہے، شیئرز کو سیل آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکویٹی مارکیٹ میں جو ہے ہمارے پاس کارپوریشن کے شیئرز کو کیا کی جاتے ہیں، سیل کیے جاتے ہیں ٹو ڈفرینٹ کنٹریز، اور یورو بانڈ مارکیٹ میں کیا کیا جاتا ہے، وہاں پہ بانڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ اور کارپوریشن ایشو کرتے ہیں، اور انہی بانڈز اور انہی
جو انہوں نے ایشو کیے ہوتے ہیں گورنمنٹ اور بزنسز نے، تو ان میں ڈالر اماؤنٹ میں جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ میں شیئرز میں جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.